लेट मी नो अगर कोई रिमूव हो रहा है तो. आई एम नॉट रिमूविंग एनीवन बट इट्स शोइंग मी द मैसेज. Okay, so but basically naive Bayes was completely based on probability. हमने देखा कि when we provide training data, during the training data, when we are supplying training data, this naive Bayes model, it calculates the probability for the pool. ठीक है? The more training data you will supply, the more refining probability the model will generate or calculate. But I don't want to spend more time on this because that was the whole lecture on this. Today we are going to cover the third classification technique, which is also very prominent, particularly for image data. Okay, and the name of this technique is sport vector machine. कितनों ने नाम सुना है पहले, या कितनों को पता है ये कैसे काम करते हैं? How many of you know how SVM works? सर थोड़ा बहुत रीड किया हुआ है इसके बारे में. Yes, एक है कि ठीक है इसको just to use it as a Python library. That is not my question. My question is what is the mechanism behind this SVM? How it works? किस तरह से ये आपके प्रॉब्लम को क्लासिफाई करती है? How can you optimize? Okay, this is the main goal of the course. The CN tree को हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा, फिर नाइव बेस को डिटेल में पढ़ा, और हम ये भी पढ़ रहे हैं साथ कि ये मॉडल किस तरह से काम करते हैं. एक्चुअली वी आर नॉट जस्ट यूजिंग द मॉडल, वी आर बेसिकली एक्सप्लेनिंग हाउ दीज मॉडल्स वर्क्स. Okay, this is very interesting and very important lecture from this point of view. Listen carefully, for इसमें टेक्निकल स्टफ भी आएगा. ठीक है, so first of all ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन की ये डायग्राम है जिसमें आपको 2 कलर्स के डॉट नजर आ रहे हैं. ठीक है, और फिर एक सेपरेटर लाइन नजर आ रही है, और फिर उसके पीछे एक ग्रीन शेड नजर आ रहा है. दैट्स ऑल एंड दैट इज SVM. So let's discuss all these ingredients in detail. Yeah. Sport vector machines are linear classifiers that produces the optimal separating boundaries hyperplane. पहली बात तो ये है कि if you want to apply SVM on any data set, you have to judge it by looking at the sample of the data whether this is linearly classifiable or not. बात में समझ आ रही है आपको कि नहीं? जी सर. यानी ये ना हो कि डाटा लीनियरली क्लासिफाई हो ही नहीं सकता and you are applying SVM, then you are wasting your time. Okay, because the main role of SVM is to draw a hyperplane between your data, between the classes of your data. It can be applied to binary class problem and it can be applied to multi-class problem. Okay? Binary is a little bit simple. Multi-class is definitely challenging, but our focus is binary first. Find W and B. ये दो बड़ी इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं. W वेक्टर है, हाइपरप्लेन के ऊपर जो आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दैट इज योर W, एंड B is the distance of your hyperplane from origin. Okay, ये हम सब देखेंगे डिटेल में, no worry. In a way so that to maximize the margin while classify all the training patterns correctly for linearly separable problem. हमने जो करना है इसमें 2 काम करने होते हैं SVM में, और एल्गोरिथम implements 2 steps. और इसी में ही अगर आप इसको ऑप्टिमल नहीं करेंगे, यहीं से एरर आता है. लेट्स मे बी अगले स्लाइड में मैं आपको बताता हूं जाके. SVM problem definition
एजम्पशंस क्या हैं जी? बाइनरी क्लासिफिकेशंस, मीन आपके डाटा में 2 क्लासेस हों, पॉजिटिव क्लास एंड नेगेटिव क्लास। इसके सिनेरियोज क्या क्या है आपकी डेली लाइफ में? बहुत काउंटलेस हैं, बट आई कैन जस्ट नेम फ्यू। आपका ईमेल्स का मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले लेक्चर में। आजकल बल्कि ये जीमेल और आउटलुक ने ये किया भी हुआ है, even not they are doing just spam and no spam, but they are even doing now focused and others. आपने देखे हैं फोल्डर? यस सर, जीमेल की प्रायोरिटी Yes, sir. ईमेल एंड नॉन प्रायोरिटी ईमेल्स। और अगर किसी ने ये नहीं देखे तो स्पैम और नॉर्मल तो देखे ही होंगे। अब ये बाइनरी क्लास प्रॉब्लम है। आपने ये एक नई आने वाली ईमेल को देखते हुए डिसाइड करना है वेदर इट शुड गो टू स्पैम फोल्डर और शुड गो टू इनबॉक्स फोल्डर, relevant or non-relevant. Student will buy, this person will buy computer or not buy computer. Okay, should we give loan to this person or should we not give loan to this person? Is this cat or is this not cat? These are many examples that you can classify through SVM. Mechanism जो use करता है ये classifier that uses vector representation of your data. Okay. Any item to be classified can be represented as a dimensional real vector. जितना भी आप डाटा प्लॉट करते जा रहे हैं आपके वेक्टर स्पेस के अंदर, ठीक, एवरी डाटा इज रिप्रेजेंटिंग ए डाटा पॉइंट रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर। टास्क क्या है हमारा? आपके पास रैंडम स्पॉट हैं, रैंडम नहीं है एक्चुअली, क्लासिफाइएबल स्पॉट्स हैं, ठीक है। अब इंसान ह्यूमन तो बड़ी इजीली कह देगा कि यार यहां पर बाउंड्री बन जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? मैं अगर एक प्लेन एक कागज पे कुछ रेड डॉट लगा दूं, कुछ ब्लू डॉट लगा दूं और सेपरेबल हों, तो आप 1 सेकंड के अंदर लाइन ड्रॉ कर देंगे कि दीज आर द रेड एंड दीज आर द ब्लू। ट्रू और नॉट? यस सर, एग्जैक्टली। बट आप मशीन को कैसे समझाएं कि यहां बाउंड्री ड्रॉ करनी है? बस यही गोल है। अगर आपने मशीन को समझा दिया कि यहाँ वो हाइपर प्लेन आएगा, यहाँ बाउंड्री बनेगी, दैट्स योर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन ये इतना इजी नहीं है क्योंकि मशीन इज ब्लाइंड। उसको ये भी नहीं पता कि ये रेड है ये ब्लू है, इट डजंट नो। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स को वो समझता है, ये इस डाटा की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी ये है। गॉट इट? सो द टास्क इज find a linear classifier or hyperplane, मैं इसको hyperplane भी कहूंगा, it's the same word, that divides your domain. Yes. Sir, here you have mentioned that hyperplane will cut that entire plane in 2 parts. Can we use more than 2 planes, like 3, 4, 5? Yes, we can. वो तो मल्टी क्लास प्रॉब्लम हो जाएगा ना। Yes, we can do. वो मैंने बताया आपको। इस वक्त मैं बाइनरी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। If your problem is multi-class problem, then it will not be one hyperplane, multiple hyperplanes. But वो बने तो फिर है। Clear? So your whole vector space should be divided by hyperplane. टास्क हमारा ये है कि किस तरह से हम अपनी वेक्टर स्पेस को एक हाइपरप्लेन से इस तरह डिवाइड करें कि there should be minimum number of misclassifications. Got it? यस सर। कम से कम मिसक्लासिफिकेशन हो। ऐसी जगह आप लाइन ड्रॉ करें कि ब्लू डॉट्स में कोई एक भी रेड ना हो, या अगर हो तो कम से कम नंबर ऑफ रेड हो। इसी तरह रेड में कम से कम ब्लू डॉट्स हो। जिसको समझ नहीं आ रहा वो पूछ सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। ये आपकी वेक्टर स्पेस है कंप्लीट। एग्जाम्पल, ए 2-dimension एग्जाम्पल ट्रेनिंग सेट, टास्क सेपरेटेड बाय लाइन। यहां तक ह्यूमन भी मल्टीपल लाइन ड्रॉ करेगा सेपरेट करने के लिए। अगर मैं पूरी क्लास में ये पेज दे दूं तो हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड देयर कैन बी मल्टीपल लाइंस टू ड्रॉ बाउंड्री वॉल। ऐसा कि नहीं?
बिल्कुल सर। लेकिन इन सारी लाइनों में से कोई एक लाइन ऑप्टिमल होगी ना, सारी तो नहीं हो सकती। तो बेसिकली हमने एल्गोरिदम को यही समझाना है कि कौन सी लाइन ऑप्टिमल हो सकती है, ताकि हमारा जो क्लासिफिकेशन एरर है वो कम से कम आए। The error of our classification should be minimal. As I mentioned here, any of these linear classifiers would be fine, but which one is better or best? That is the question. Got it? यस सर। बाकी लोग भी बोल रहे हैं, बोलते नहीं है, कहाँ हैं वो? मोबाइल पे ऑन तो नहीं किया होगा, खाली ज्वाइन किया होगा। समझ आ रही सबको? जी सर। Yes, Okay. sir. Thank you. Which line is better? Idea measure the quality of linear classifier by its margins. अब याद रखें, ये वही स्क्रीन है दोबारा। अब मैंने इसके अंदर एक बेस्ट लाइन ड्रॉ कर दी है। बेस्ट लाइन का क्राइटेरिया भी आपको बता दिया। क्राइटेरिया ये होगा कि ऐसी जगह पे लाइन ड्रॉ करें जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स क्लासिफाई हो जाए। These points are your data samples, data points. Okay? अच्छा, अब एल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू, अब मैं थोड़ा टेक्निकल की तरफ जा रहा हूँ। ये अभी तक मैंने लेमैन की बातें की है सारी, इसलिए आपको बड़ा इजीली समझ में आ रहा है। बेसिकली टू अचीव दिस गोल, कि ऐसी जगह पे लाइन आए जिससे ये बेस्ट क्लासिफिकेशन हो सके, इसके पीछे दो पॉइंट्स हैं, और यही दो स्टेप हैं जो एसवीएम एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करता है। पहला स्टेप ये है कि ये लाइन सही जगह पे ड्रॉ हो। ह्यूमन को तो पता चल जाता है फौरन देखते हुए, लेकिन एल्गोरिथम को तो पता नहीं चलता। एल्गोरिथम इसको यहां पहली दफा ड्रॉ नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। इसके आइट्रेशंस होंगी जिन्हें हम इकोप कहते हैं, इपोक, सॉरी इपोक, नाम सुना आपने इपोक? यस सर। हम ये कहते हैं एल्गोरिथम को मैंने इतने इपोक्स के लिए रन किए। वो इपोक्स आर नंबर ऑफ आइट्रेशंस। वो इपोक्स आपकी एक लेवल तक होनी चाहिए, उससे आगे भी ना हो। मसलन जब एक एल्गोरिथम ने मैक्सिमम ऑप्टिमैलिटी अचीव कर ली है, उसके बाद की इपोक आपकी सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रही है। यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग इन द रिजल्ट। डेफिनेटली एक थ्रेशोल्ड से कम तो हो ही नहीं सकती, अदरवाइज तो योर एक्यूरेसी विल बी सब ऑप्टिमल, यू विल बी कंप्रोमाइजिंग ऑन द एक्यूरेसी। ओके, लेकिन एल्गोरिथम यहां से स्टार्ट नहीं ले सकता जहां लाइन पहुंची हुई है। इसके पीछे थाउजेंड्स ऑफ इपोक रन हुए हैं तो आप यहां पहुंचे, एल्गोरिथम यहां पहुंचा है। तो इसमें दो स्टेप हैं जो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करता है, उसके पीछे मैं बाद में जाऊंगा भी कि उनको कैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं दोनों को। एक ये है कि लाइन को मूव करना पूरी को, ठीक है, कहां जाके लाइन रुकेगी। दूसरी ऑप्टिमाइजेशन है ये जो ग्रीन शेड है, इसको मैक्सिमम करना, इतना मैक्सिमम कि ये पॉइंट्स को क्रॉस भी ना कर जाए दोनों क्लासेस के, और पॉइंट्स और लाइन के दरमियान वाइट गैप भी ना रहे। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो ये दो चीजें अगर आपने ऑप्टिमाइज कर ली, इफ यू हैव ऑप्टिमाइज दीज टू थिंग्स, you will reach to the Yes, sir. final results, and that will be the SVM, that will be the optimized hyperplane draw by SVM. यही SVM का एल्गोरिथम है बस। Excuse me, sir. जी, Sir, in this particular case, both the clusters are parallel in parallel. That's why the line is touching the both clusters. If these clusters are not parallel, then पैरेलल what से will क्या be the मुराद है case? आपकी? पैरेलल से क्या मुराद है? पैरेलल से ये मुराद है कि जो ब्लू के डॉट्स है ना, बिल्कुल लाइन है एक वर्टिकली ना, अगर देखें एक पैरेलल प्लेन में इंक्लिनेशन में, इस तरह जो रेड वाले लेफ्ट मोस्ट डॉट्स हैं वो भी
एक उसमें ही ब्लाइंड आ रहे हैं। देखिए, अगर आप पैरेलल ना कहें, ये पैरेलल लफ्ज़ इज कंफ्यूजिंग, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये अपनी अपनी क्लियर बाउंड्री में नजर आ रहे हैं, ऐसे यही मकसद है आपका? यस सर। ये अगर एक बाउंड्री में ना हो, ये तो मैंने आपको पहले बताया कि इसीलिए हम पहले सैंपल देखते हैं डाटा का। अगर आपको लगे कि ये प्रॉब्लम क्लासिफाइएबल ही नहीं है तो फिर एसवीएम आपको लाइन नहीं करेंगे ना। लेकिन यहां तो मैंने डॉट इसलिए लगाए। अब ये तो आपको पता है ना कि ये जो ईमेल जंक होगी वो एट द सेम टाइम इनबॉक्स तो नहीं होगी ना, इसमें से कोई एक होगी। ठीक है, आप यहां पर स्पेस में जहां डॉट लगाओ इस पे कंफ्यूज ना हो। एक्चुअली आपने नेचर ऑफ डाटा देखना है, क्या उसके अंदर क्लासिफाई होने की प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं है। अब जिस तरह स्पैम और नॉट स्पैम बाइनरी है ना ये, ठीक है, वो डेफिनेटली जो स्पैम के पीछे फीचर होंगे ना वो उसको ऑटोमेटिक एक बाउंड्री पे लेके जाएंगे, और जो नॉट स्पैम के पीछे फीचर होंगे वो उसको दूसरी बाउंड्री पे लेके जाएंगे, क्योंकि जब फीचर अगर सेम हो गए फिर तो वो डिस्टिंग्विशेबल ही नहीं है। डिड यू गेट माय पॉइंट और नो? यस सर। अगर आपकी ईमेल में जंक में भी वही कीवर्ड आ रहे हैं, जंक ईमेल में भी जो आपकी नॉर्मल में आते हैं, फिर तो कोई इसको ह्यूमन भी इसको डिसाइड नहीं कर सकता। सो डेफिनेटली देयर मस्ट बी ए यूनिक सेट ऑफ फीचर्स फॉर जंक फॉर नॉर्मल। यहां मैंने वही थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है। अब अगर ये हो सकता है, वो बाद में आएगा भी, अगर ये आपका क्वेश्चन था कि एक ब्लू डॉट यहां हो सकता है रेड के अंदर, यहां एक ब्लू डॉट हो सकता है, ठीक है। अगर यहां एक भी ब्लू ना हो तो इसकी एक्यूरेसी तो 100% है। फिर जो एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है या किसी वजह, उसकी रीजन यही होती है कि सारे के सारे डाटा पॉइंट्स क्लासिफाई नहीं हो रहे एक्यूरेटली, सम पॉइंट्स आर गेटिंग मिसक्लासिफाइड। क्लियर जी? वो दो स्टेप कौन बताएगा जो मैंने अभी बताए हैं, दैट एसवीएम एल्गोरिथम इंप्लीमेंट्स। सर एक तो ये ऑप्टिमल लाइन का है और दूसरा ये ग्रीन पर्सन जो है। यस, एक ये है कि लाइन कहां ड्रा हो। अब ये लाइन ह्यूमन कोई बात नहीं कर रहा, मैं एल्गोरिथम की बात कर रहा हूं। अगर एल्गोरिथम यूं बात ड्रा कर दे, हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, बिल्कुल। दिस इज अ बैड सेपरेटर, दिस इज अ बैड हाइपर प्लेन। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, अगले इपोक में इससे लर्न करेगा। कैसे लर्न करेगा? वो देखेगा कि अगर उसको ये समझाया हुआ है कि यार राइट पे सारे के सारे रेड होने चाहिए, लेफ्ट पे ब्लू होने चाहिए, जब उसको अगला पॉइंट्स ब्लू मिलता है राइट की तरफ, तो एल्गोरिथम समझता है ये लाइन ठीक नहीं ड्रॉ हुई, तो इस लाइन को पुश करेगा राइट की तरफ, फिर वहां पहुंचेगा, यहां लाइन ड्रॉ होगी, यहां जाएगा, फिर देखेगा एक और ब्लू आगे मिला है, फिर वो समझेगा ये लाइन भी ठीक नहीं थी, फिर वो और आगे जाएगा, और इस तरह करते करते लाइन मूव होगी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ मूविंग अ लाइन। जो मार्जिन है मूव करने का, उसका मैकेनिज्म कुछ और है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाई दे आर नॉट मूविंग? यहां तो मैंने ड्रॉ नहीं की लाइन। ओके, चले, इज दिस अ गुड सेपरेटर? टेल मी। यस सर। Is this a good separator? No, sir. Why? No, sir. नो। Oh, 8 point is right. Very like it's touching the line. Yes, लाइन पे तो देखें, रेड को तो ये भी टच कर रहे हैं, ग्रीन को तो। Is this the सर reason? बाउंड्री में आ रहा है। हाँ, सर वो Why it's not बाउंड्री में good? आ रहा है और ये लाइन टच कर रहा है। Yes, actually
बेसिकली ग्रीन लाइन तो मार्जिन है, एक्चुअल सेपरेटर तो ब्लैक लाइन है। तो इस केस में द डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स, ये जो इसके करीब होते हैं, सबसे करीब सॉफ्ट मार्जिन के सबसे करीब जो पॉइंट होते हैं, इनको हम सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं। इस सेपरेटर में प्रॉब्लम ये है कि एक क्लास के सपोर्ट वेक्टर बहुत करीब हैं, दूसरी क्लास के सपोर्ट वेक्टर दूर हैं ब्लैक लाइन से। सो इट मींस द स्प्रेडिंग मार्जिन इज नॉट इवन। गॉट इट? ये सर बिल्कुल सर। तो फिर मतलब रेड क्लास को ये ज्यादा बेहतर क्लासिफाई करेगा। Maximum margin classifier is the linear classifier with maximum margin. ये इसकी डेफिनेशन है। ऐसी सेपरेटर जिसके साथ मैक्सिमम ये मार्जिन हो और मिस क्लासिफिकेशन भी ना हो, उससे ये होगा कि दैट विल बी योर बेस्ट क्लासिफायर। कोई बताएगा कि ये मार्जिन ज्यादा क्यों होना चाहिए? क्या रीजन है इसकी? Why we want this margin maximum? So that to clearly differentiate between the clusters or classes. Yes. अब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर कोई डॉट, चले यहाँ लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सेपरेटर तो है ये कि नहीं? बिल्कुल ऐसा। यहाँ पर बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ब्लू डॉट यहाँ आ सकता है। इसको ब्लू ही करना चाहिए था मुझे यार। चले इसको ब्लू समझना यार, ये ब्लू डॉट है कि नहीं? ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ऐसा। इट हैज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ब्लू डॉट यहाँ आ जाए, और डेफिनेटली और भी आ सकता है ब्लू डॉट यहाँ। मुझे ये बताएं कि आपने जो लाइन बाउंड्री ड्रॉ की थी, नो डाउट वो सेपरेटर था, बट इट वाज नॉट गुड सेपरेटर, क्योंकि आपकी एक क्लास की डाटा पॉइंट्स की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो दूसरी क्लास में मिक्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर इसकी मार्जिन भी बहुत कम हो, यहाँ ये मार्जिन है इतना सा, तो वो आंसर ठीक दिया था आपने। अगर मार्जिन कम होगा तो चांसेस है कि पॉइंट्स दूसरी तरफ चला जाएगा। मार्जिन ज्यादा, जितना ज्यादा होगा, अनटिल अनलेस कि आप वॉयलेशन नहीं कर रहे, ज्यादा मार्जिन से आपकी सेपरेशन बेहतर होगी, प्रोबेबिलिटी कम होगी कि दूसरा पॉइंट उधर जाए। बात समझ आ रही? लेकिन इसके साथ एक बात और भी आपने ज़हन में रखनी है, दिस वेरी गुड पॉइंट, कि अगर मैं ये भूल न जाऊं, अगर मार्जिन आपने ज्यादा रखा है, विच इज गुड, और यही रीजन है कि क्यों हम ज्यादा मार्जिन, दैट्स आवर प्रेफरेंस, सो दैट मिसक्लासिफिकेशन शुड बी मिनिमम। बट अगर एक पॉइंट भी अब इधर आ गया, ब्लू पॉइंट यहां आ गया सपोज, और पिछली स्लाइड में जो ब्लू पॉइंट मैंने ड्रॉ किए थे, एरर जो होगा वो इसमें ज्यादा निकलेगा। कोई बताएगा क्यों? सर क्योंकि हमने बाउंड्री ज्यादा बड़ी ली है। और कोई? सर मार्जिन को भी क्रॉस कर दिया उसने। हाँ, असल बात ये है कि जो एरर होता है ना, एरर कंसीडर होता है ब्लैक लाइन से डिस्टेंस पॉइंट का। ये डिस्टेंस ज्यादा है या यहां पर लाइन से डिस्टेंस ज्यादा है, मुझे बताएं। नेक्स्ट स्लाइड पे ज्यादा है ना? डेफिनेटली सर, नेक्स्ट वन। ये ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस बेसिकली एरर बताता है। हालांकि एक ही पॉइंट दूसरी तरफ गया है, लेकिन इसका डिस्टेंस इतना ज्यादा होगा कि वी विल गेट मोर पनिश ड्यू टू दिस वन पॉइंट। ठीक है। और दो एरर मिलके
एसवीएम का टोटल एरर, आपकी क्लासिफिकेशन का एरर बताते हैं। जो हम कहते हैं ना कि अच्छा क्लासीफायर कितना अच्छा रहा है, एसवीएम के जो रिजल्ट है कितने एक्यूरेट है, उसके पीछे दो फैक्टर हैं जो एरर में काउंट होते हैं। एक है परसेप्ट्रॉन एरर, कि ये लाइन ड्रॉ कहां हुई है, ठीक है, ये यहां ड्रॉ हुई है, यहां ड्रॉ हुई है, यहां ड्रॉ हुई है, ये यहां ड्रॉ हुई है। एक तो एरर इसकी वजह से आता है जिसे हम परसेप्ट्रॉन एरर कहते हैं। एक एरर आता है मार्जिन। अगर मार्जिन में एक्सपेंड होने की गुंजाइश थी और आपने, आपके एल्गोरिथम ने उसको नहीं किया ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ इपोक, तो ये भी एरर होगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिन एरर। तो इन दोनों एरर को मिला के जो टोटल एरर बनता है, दैट इज योर क्लासिफिकेशन एरर। इज इट क्लियर? Sir, the first one you told perceptron, word perceptron. Perceptron error, yes. That is error due to the incorrect draw of the line. I have shown you many examples. This could be one line, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अगर ये लाइन एक्यूरेट नहीं, दिस यहां से भी एरर आएगा। सेकंड एरर वुड बी द एक्सपेंडिंग ऑफ द मार्जिन। If you did not expand this maximum, then you will get this error. Okay, so the maximum margin classifier is the simplest kind of support vector machine called linear SVM. Let's assume for now that there always is such a classifier that is the training set is linearly separable. ये मैंने आपको पहले बताया कि आपने ऐसी डाटा सेट पे एसवीएम नहीं लगा सकते जिसमें सेपरेबल होने की कैपेसिटी या क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो। Okay, the data points that the margin pushes against are called support vector. ये जो पॉइंट्स हैं जिनको मार्जिन पुश करता है, these are called support। और जंग भी इन्हीं के ऊपर है टोटल, बाकी और यहां कौन पूछता है, ये एरिया सेफ है, ये एरिया सेफ है। इन पॉइंट्स को सिर्फ क्लासिफाई करते हैं हम, इनकी बेस पे ऑप्टिमैलिटी नहीं होती कुछ भी, और चांसेस भी बड़े कम है कि कोई आपका ब्लू डॉट यहां जाके आ जाए। देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है जहां मैंने रेड बनाया अभी, यहां जाके कोई ब्लू आए। व्हाई चांसेस आर लो? बिकॉज इट कुड बी ओनली नॉइज और कंप्लीटली आउटलायर। रेगुलर डाटा में अगर ब्लू ज्यादा से ज्यादा आएगा भी तो वो यहां तक जाएगा, इसके ऊपर आएगा, कहीं इधर नहीं जाएगा। इसीलिए these data points are at very low priority, these data points are very low, or you can say safe classified points। जो जंग है, जो क्रूशियल काम है, वो है ही मार्जिन के ऊपर। That's why these data points are called support vectors। इन्हीं के ऊपर सारे वो होना, ऑप्टिमाइजेशन होनी है। सर मार्जिन को मैक्सिमाइज हम नंबर ऑफ आइट्रेशंस को इंक्रीज या डिक्रीज करके करते हैं? जी देखिए, इंक्रीज करने से ये 100% नहीं है कि आप इंक्रीज करते जाए तो इंक्रीज होता ही जाएगा, करते नहीं। अगर आपने इंक्रीज करते जा रहे हैं आप, उसके पीछे एक फार्मूला है ना, हर आइट्रेशन में वो फार्मूला लगता है दोबारा। अगर उस फार्मूले में कोई गुंजाइश निकलती है तो मार्जिन एक्सपैंड होता है, अगर उसमें वही वैल्यू बार बार आना स्टार्ट हो जाए तो मार्जिन रुक जाता है। ओके सर, थैंक यू। जी, एनी मोर क्वेश्चन? Why maximum margin? It's intuitive to divide the two classes by large margin। ये मैंने आपको बताया अभी कि जितना मार्जिन ज्यादा होगा, हम चाहते हैं कि क्लियर बाउंड्री आए और मैक्सिमम बाउंड्री आए, वाइड हो, ताकि एक क्लास के डाटा आइटम्स को दूसरी क्लास में जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम से कम हो। Okay, the largest margin guards best against small errors। वो मैंने आपको एग्जांपल भी देके दिखाई है एक स्लाइड पे, मैंने सेपरेटर भी बनाया है, स्टिल देयर वाज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट ब्लू डॉट कैन क्रॉस द लाइन। ठीक है, अब वो सेपरेटर ठीक नहीं है और वहां मार्जिन भी नहीं है, तो देयर इज अ हाई चांस ऑफ एरर। This approach is robust since usually only a small fraction of data points are support vectors।
यस, ये क्या कह रहे हैं, ये सेंटेंस आपको समझ आया? वो कहता है एसवीएम क्यों रोबस्ट है, विल टेल। मैं पॉइंट मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया, व्हाई एसवीएम इज रोबस्ट ओवर इवन डिसीजन ट्री। क्योंकि सर जो उस लाइन के पास हैं वो बहुत लिमिटेड हमारे पास सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली, यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली। कितने परसेंट डाटा पॉइंट्स हैं जो इस टोटल ग्रीन में से, कितने हैं जो सिर्फ बॉर्डर पे हैं? सिर्फ 2 सर। ओनली 2। कितने हैं जो टोटल ब्लू में से ऑन बॉर्डर हैं? 3 या 4। तो बेसिकली यू नीड टू ओनली ऑप्टिमाइज दीज पॉइंट्स, बाकी तो बड़े क्लियर हैं। So the complexity of your algorithm becomes very low in this case. ये बात समझ आ रही है आप सबको कि नहीं आ रही? यस सर। Yes, sir. There are some theoretical arguments why this is good thing, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। Empirically it works very well. You will not face much latency in SVM. Okay. आ जाए जी। अब थोड़ा सा फॉर्मल की तरफ चलते हैं। ये सारा कुछ होगा कैसे? अभी तक हमने सारी बातें की हैं, बट प्रैक्टिकली होगा कैसे ये? दैट्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मैथ बिहाइंड दिस। अब ये जो चीजें, ये असल मेरा पढ़ाने का आपको मकसद है। पाइथन की आप लाइब्रेरी यूज करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको पता कुछ नहीं होगा कि हुआ क्या है, एरर निकला कैसे है। ठीक है, ओके। हाउ टू फॉर्मलाइज दिस अप्रोच? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेटली वी हैव टू सप्लाई ट्रेनिंग डाटा. Let there be n training examples. The ith training example is pair yi and zi. हर डाटा आइटम इस पेयर पे मुश्तमिल होगा, yi and zi, where yi is a dimensional vector and zi is a class label. ठीक है, अगर ये बाइनरी क्लास प्रॉब्लम है तो इसके दो ही लेबल होंगे, -1 और +1, राइट? -1 स्टैंड फॉर फर्स्ट क्लास एंड +1 स्टैंड फॉर सेकंड क्लास। अब ये जो डाटा पॉइंट आए हैं, क्योंकि ये बाइनरी है तो इट विल बी ऑन द प्लेन 2 एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब x y के लिहाज से जो ये yi जो वेक्टर बनता है, ये जो मैं बताया था यहाँ पर, उसके लिहाज से ये प्लॉट हो रहा है। yi रिप्रेजेंट 2 डायमेंशनल स्पेस वेक्टर। 2 डायमेंशनल स्पेस वेक्टर किसको कहते हैं? कि लेट्स सपोज अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो 1 x एक्सिस पे जाना है और फिर 2 y एक्सिस पे जाना है, तो वेक्टर कोऑर्डिनेट वुड बी 1 and 2. डिड यू गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And the second parameter is zi, mean this class is classified as a negative. Class label for this item is negative. इसी तरह इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपको x एक्सिस पे 4 पॉइंट जाना है और y एक्सिस पे 1 पॉइंट जाना है, so the coordinate would be 4 and 1, and the class identification for this is positive. That's why I put positive in this, and that's how I plotted all the points. Any question? सर ये -1 और 1 जो हमारे पास क्लास लेबल्स हैं, ये हमने किन बेसिस पर इनको असाइन किए हैं? जैसे 1 और 2 के साथ -1। ये तो हम ट्रेनिंग डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं ना, लेबल असाइन करके दे रहे हैं खुद से। सर ठीक। किन बेसिस पर असाइन करेंगे ये लेबल्स? फीचर्स की बेसिस पे। आप पीछे बता रहे हैं Okay, लेबल sir. देके, आप लेबल लगा के मुझे बता रहे हैं कि ये मेल जंक है, ये मेल जंक नहीं है। Okay, sir. ओके, So this label can be anything like X, Y. यस यस, दिस लेबल कैन बी थिंग। बस बाइनरी के लिए हम इससे बेहतर क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव यूज कर रहे हैं, आप 0 1 यूज कर लें।
ठीक है। हाँ, जब मल्टी क्लास होंगे तो फिर ये एक्स वाई जेड हो जाएंगे। ओके, नाउ अभी मैंने कोई बाउंड्री इस पे कोई हाइपर प्लेन ड्रॉ नहीं किया, अभी सिर्फ डाटा पॉइंट्स प्लॉट किए। लेट्स सपोज दिस इज आवर ट्रेनिंग डाटा। अब काम शुरू अभी होगा कि अब हमने इसके ऊपर हाइपर प्लेन ड्रॉ करना है, एल्गोरिथम से ये करवाना है बल्कि, और इस सेंस में करवाना है कि वही दो क्राइटेरियाज कि लाइन अपनी एक्यूरेट जगह पे आए और फिर उसका जो मार्जिन है वो मैक्सिमम आए। दीज आर द टू, ये पॉइंट नहीं भूलना है आपने। सो व्हाट इज अ वैलिड लीनियर सेपरेटर? एनी हाइपरप्लेन कैन बी डिफाइंड बाय अ रियल रो वेक्टर W एंड स्केलर B। जितने भी हाइपरप्लेन है ना, इसकी जो इक्वेशन बनती है, इसमें दो इसमें कंपोनेंट होते हैं, एक वेक्टर होता है W और एक स्केलर होता है B। वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर on the hyperplane and scalar B is a distance of the hyperplane from the origin. Okay, so the set of points located on the hyperplane is given by, ये equation बन जाएगी W dot x plus B। x शो कर रहा है कि आपका ये पॉइंट का नाम x है। इसी तरह से मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं, x1 x2 xd। हर पॉइंट के अगेंस्ट परपेंडिकुलर होगा W1 W2 WD, और B जो होगा उस पूरी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। दैट इज द इक्वेशन ऑफ योर हाइपरप्लेन। एनी क्वेश्चन? सर काइंडली जरा रिपीट कर दें। ये जो आपका मैं बता रहा हूं कि आप ये जो लाइन प्लॉट करते हैं ना कहीं पर भी, उसके कैसे पता चलेगा ये लाइन कहाँ है वेक्टर स्पेस में? उसका पता दो उससे चलेगा। एक उसका नॉर्मल वेक्टर which is the perpendicular from the line which is called W here, and B is the distance। मेरे ख्याल में मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब ये अगर लाइन है तो इसका परपेंडिकुलर, सॉरी, इसका परपेंडिकुलर यहाँ बनता है ना, हाँ? यस सर। तो एक स्टेप आपने यूं जाना है और एक स्टेप यूं आना है। should be 90 angle here, so that is one in positive direction, one in negative direction. That's why x1 positive minus x2 negative. This one is negative downward, this one is positive. ये आपका W है माइनस, अब बेसिकली तो यहाँ प्लस B है फार्मूले में, बट ये -2 कैसे आ गया? -2 ऐसे आया कि इफ आई ग्रो दिस लाइन हेयर और ग्रो दिस लाइन दिस एक्सेस, यहां जाके ये इसको टच करती है, इट मींस ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वहां तक, ये कितना है? -2। समझ आई कि नहीं? यस सर। नीचे जा रहे हैं ना आप एक्स एक्सेस से तो माइनस हो जाएगा, और 2 स्केल नीचे जा रहे हैं तो -2। दैट्स व्हाई प्लस B की जगह मैंने -2 पुट कर दिया। अब अभी आप इतने Sir, can you kindly re-explain this example? थोड़ी confusion हो रही है। Yes, I can recall it. I don't know रबर कहाँ है यार इसका। एक्सक्यूज मी सर, सर ये इक्वेशन के अंदर लिखा है x बिलोंग्स टू ये r इज, ये क्या है सर? R आपकी पूरी डायमेंशन स्पेस है। ओके, ठीक है, उसके अंदर ये पॉइंट्स हैं कहां कहां पर भी हैं, लेकिन अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये उसी डोमेन, वेक्टर डोमेन पे लाइन ड्रॉ हुई है ना। अब इस लाइन को मैं कैसे फाइंड करूंगा ये कहां पर है? एल्गोरिथम कैसे ढूंढेगा ये लाइन कहां है? ये लाइन यहां भी तो हो सकती है, क्या पता ये कहां लाइन है। ये इक्वेशन बताएगी ये लाइन यहां पर बन रही है। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, so I was just saying I want to actually erase this so that I can do this again. इसकी शॉर्टकट की क्या है?
चलें, दैट्स गुड। ओके, नाउ आई वाज सेइंग हियर कि आप में अब देखें ये इक्वेशन इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये बनती है बेसिकली w x प्लस b ये इक्वल 0। अब नाउ इसमें w कैसे हम निकालेंगे? w would be, will draw perpendicular which is a normal vector। नॉर्मल वेक्टर हम उसको कहते हैं जो परपेंडिकुलर होता है उस लाइन के। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे वेक्टर के? इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे, आपने इसको यूं स्ट्रेच करना है और फिर इसको ट्राइंगल बनानी है यहाँ पर। तो इतना आप इधर गए हैं विच इज +1, फिर उस पॉइंट से जब नीचे आएंगे तो -1 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 1 और -1। ये W आपका। ये 2 कैसे आएगा? B विच इज B is the distance of this line from origin। अब distance इसका कितना है? You need to extend this line and extend this line। जहां पर ये मिल रहे हैं origin से इस line का distance -2 बनता है। So that -2 will come here। Got it now? Okay। Yes, sir. अब ये 3 कंडीशनें बनेंगी इस इक्वेशन पे। अगर तो ये कंडीशन इक्वल टू 0 हो, इसका मकसद है कि वो जो डाटा पॉइंट है वो आपकी इस लाइन के ऊपर है कहीं। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद लेस देन 0 आए तो आपका डाटा पॉइंट लेफ्ट साइड पे है कहीं भी लाइन से, और अगर इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आए तो आपका डाटा पॉइंट राइट साइड पे है। अब ये वो फार्मूला हम बना रहे हैं जिसके बेस पे एल्गोरिथम इस लाइन को ऑप्टिमाइज करेगा। एल्गोरिथम को तो डॉट नजर नहीं आते, उसको ये इक्वेशन नजर आएगी। इस इक्वेशन में दे के हमने इस लाइन को मूव करवाना है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अब आवाजें बंद हो रही हैं। सर काफी कंफ्यूजिंग है। अभी तो हम आगे गए ही नहीं है, अभी तो हाफ वे में भी नहीं पहुंचे। सर ये क्वेश्चन है मेरा। सर यहाँ पर जिसमें ये लाइन ड्रॉ हुई और आपने बताया कि जो W था वो -2 आया है, ये वो पॉइंट है कि जहां पर लाइन W -2 नहीं आया, B -2 आया। सॉरी B -2 आया। यस सर बिल फर्ज लाइन अगर इस हवाले से ड्रॉ हो कि वो पॉइंट 0 पर आकर मतलब इंटरसेक्ट करे उसको, हाँ, तो हम फिर वहां पर वो 0 लेंगे। B 0 आ जाएगा। ओके अगर ये पॉइंट लेंगे जी, जिस पॉइंट पर लाइन इंटरसेप्ट करेगी एक्सिस को वो पॉइंट लेंगे, वो लेंगे। अब ये लाइन अगर यूं होती तो ये +2 हो जाता। ओके सर, थैंक यू सो मच। Okay, so now therefore any valid separating hyperplane WB must satisfy the following constraint। मुझे थोड़ा स्पीड पकड़नी है। आपकी इसके बाद क्लास होती है? जी सर। यार ये तो फिर हम नहीं खत्म कर सकते कभी भी, क्योंकि कंटेंट ज्यादा होते हैं और टाइम नहीं होता। Therefore any valid separating hyperplane, let me go on fast track now। Hyperplane WB must satisfy the following constraints for any I is equal to 1 to n। ये आपका लूप है, I को 1 से n तक चलाना है। If Zi is equal to -1, अगर वो नेगेटिव डाटा पॉइंट है, नेगेटिव क्लास का डाटा पॉइंट है, तो आपका उस इक्वेशन का रिजल्ट 0 से कम आएगा। अगर वो पॉजिटिव क्लास का डाटा पॉइंट है तो आपका रिजल्ट 0 से ज्यादा आएगा। आप ये करके देख लें, ये सारे पॉइंट्स को लिखे हुए आपके सामने, यू विल गेट द रिजल्ट्स। ओके, I don't want to spend much time here, but you can calculate offline. Furthermore, if WB is a valid separating hyperplane, then where r scalars r plus 1 is greater than 0 and r minus should be greater than 0, such that x plus b plus r 0 and x plus b, ये आपको समझ आया कुछ? वो ये कहता है कि अगर ये वैलिड सेपरेटर है, ये ब्लैक लाइन, ठीक है,
तो इनिशियली हम कुछ तो मार्जिन देंगे ना इसके साइडों पे। आई एग्री कि ऑप्टिमल मार्जिन नहीं है, आप इसे एग्री करते हैं? लेकिन हमने रैंडमली कुछ मार्जिन दिया, वो मार्जिन को वो कह रहा है कि लेट्स सपोज दैट इज आर प्लस एंड आर माइनस, बोथ शुड बी पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो इनिशियली, इसको हमने इक्वल पे लेके आना है। तो r प्लस इज ग्रेटर देन 0 एंड r माइनस इज ग्रेटर देन 0, बट वी नो कि अगर हम r प्लस को इस इक्वेशन में जमा करें, ऐड करें, तो हम ब्लैक लाइन पे पहुंच जाएं, या अगर हम r प्लस को इस इक्वेशन में से माइनस करें, स्टिल वी कैन गेट द ब्लैक लाइन। ये आपको करके दिखाया हुआ है, ये आपकी ब्लैक लाइन की इक्वेशन है। यहां पहुंचने पे आप माइनस आर प्लस कर चुके हैं, इसको वापस जब लेके जाएंगे तो इसको यही आर प्लस इसमें प्लस कर देंगे तो आप वापस चले जाएंगे। इसी तरह ये वाली साइड है। बताने का मकसद ये था कि ये जो आर प्लस और आर माइनस हैं, दीज आर द सॉफ्ट मार्जिन्स, दीज आर द मार्जिन्स ऑफ योर हाइपरप्लेन। और अब जो कहानी आगे चलने वाली है वो आर प्लस और आर माइनस को ही ऑप्टिमाइज करना है। ओके, आर द हाइपरप्लेन्स दैट डिफाइन द बाउंड्रीज द -1 क्लास एंड दिस आर, ये जो है ये माइनस क्लास की बाउंड्री डिफाइन कर रहा है, देखिए बाउंड्री आ गई। जो आर प्लस है ये पॉजिटिव क्लास की बाउंड्री डिफाइन कर रहा है। इससे आगे नहीं जाएंगे आप, क्योंकि you have already touched the support vector on both side। बात समझ आ रही कि नहीं? सर मतलब डेटा पॉइंट्स में अगर देखें तो मतलब जहाँ पे हमारे पास बाउंड्री नेगेटिव क्लास को टच कर रही होगी पहले पॉइंट पे ही, और पॉजिटिव क्लास के डेटा पॉइंट को, तो क्या हम उन्हीं को बाउंड्रीज कह देंगे? ये तो अभी इसको तो ऑप्टिमाइज करेंगे हम, ठीक है। हाँ, हमने एक आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू रख के ब्लैक लाइन से हमने उसको वाइड कर दिया है, बट वी हैव टू फाइंड वेदर दिस लाइन इज इवन ऑप्टिमल। इसकी बेस पे हमारी ये ब्लैक लाइन भी ऑप्टिमाइज होगी। अब ये ब्लैक लाइन सेपरेटर है, बट दिस इज नॉट ऑप्टिमाइज बिकॉज दिस इज नॉट इन द सेंटर ऑफ दीज टू वाइड लाइन्स। सर माय क्वेश्चन वाज कि मतलब अगर मेरे पास एक पहला जो पॉइंट जहाँ पे टच हुआ है, तो क्या हम उसके बाद तो आगे नहीं जाएंगे आप। एग्जैक्टली उसी कोई बाउंड्री मतलब मान उसको हमने सपोर्ट वेक्टर बना देना। ठीक है सर, जब सपोर्ट वेक्टर की ओर टच होगा तभी हम उसको आर माइनस और आर प्लस कर देंगे। उसको आर प्लस और आर माइनस कर देंगे, लेकिन अभी आर प्लस आर माइनस हमने कर दिया, बट अब क्वेश्चन है तो फिर तो ऑप्टिमाइज हो गया? हुआ नहीं अभी, क्योंकि ब्लैक लाइन अभी सेंटर में नहीं आई। ओके Sir, R plus or minus, they will decide the width of that complete band. Yes, these are the 2 points that need to optimize. And their value can also be different. Their value will tune with considering different epoch. सर अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक R की वैल्यू कम लग रही है और एक की ज्यादा लग रही है। हाँ, हो सकता है ना, मैंने नहीं कहा कि ये इक्वल होंगे। ठीक है, let W be a valid separating hyperplane with scalar R plus and R minus as defined above. Observation 1 क्या है जी? B प्राइम हमें निकालना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि अब जो B था ना, ये जो लाइन थी, ये लाइन हमारी गलत हो गई है। ब्लैक लाइन गलत होगी कि नहीं होगी? यस सर, गलत है यहाँ पे। गलत है ना? इसका मकसद बी ठीक नहीं है आपका फिर, क्योंकि जब ये लाइन की पोजीशन चेंज होगी तो इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। जब होगा तो फिर वो बी है ना, so it means your b will change। तो
उसका हल क्या है? बी प्राइम इज अ न्यू बी, जो कैसे निकलेगा? ओल्ड बी प्लस जो भी थे ये आर माइनस माइनस आर प्लस डिवाइड बाई 2, ताकि इनका सेंटर में आ जाए. दैट विल बी योर न्यू बी. मतलब सर ये कि जो लाइन की मूवमेंट है वो सारा बी डिसाइड कर रही है. जी, बी डिसाइड कर रही है, बिल्कुल. लाइन की मूवमेंट करती ही बी डिसाइड है. देन द हाइपरप्लेन w डॉट x प्लस बी प्राइम इज, अब जो नई इक्वेशन आ गई वो अब बी नहीं रहा यहां, बल्कि क्या आ गया? बी प्राइम इज वैलिड सेपरेटिंग हाइपरप्लेन विद इक्वल शिफ्ट कांस्टेंट. अब इक्वल शिफ्ट हो गए, r माइनस और r प्लस अब इक्वल हो गए, विच इज r प्राइम नाउ. इसलिए मैंने उस दोनों को डिवाइड 2 करके 0.5 कर दिए, यूं समझने चले. इस बाउंडिंग हाइपरप्लेन द मार्जिन विड्थ इज द सेम. नाउ ये ब्लैक लाइन मूव करके ग्रीन लाइन पे आ गई है अकॉर्डिंग टू द न्यू बी विच इज बी प्राइम. एग्री? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. And that's why your new equations is either yeah, ये तो पुरानी ब्लैक की है. This is your new equation. This is your new equation for blue line, and this green is a new equation for your green line, which was black before. Sir, in this example we have done this in single epoch. However, नहीं, हाँ, ये तो मैंने आपको समझाया है एग्जैक्टली. ये स्टेप बाय स्टेप मूव करके ऑप्टिमाइज होगी. मल्टीपल इटरेशंस होंगे. मल्टीपल इटरेशंस होंगी. यस, definitely I can't run 1000 iterations here. Now divide WB and R prime. Divide WB prime and R prime by R prime. This doesn't change any of the three. हाँ, अब अगर आपने इस पूरे को मूव करना हो, इस पूरे प्लेन को मैंने थोड़ा आगे लेके जाना है, इसको अगर आप इस लाइन को भी उसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, इस लाइन को भी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, इसको भी कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? सेम कांस्टेंट. नो सर. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मार्जिन में कोई कमी ज्यादा नहीं आएगी, सिर्फ सारी की सारी लाइनें मूव हो जाएंगी बस. देन द हाइपरप्लेन W डबल प्राइम डॉट x, डबल प्राइम इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अब इसको कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, प्लस b को भी मैंने डबल प्राइम कर दिया बिकॉज दैट्स गॉट डिवाइडेड बाय न्यू प्राइम. वैलिड सेपरेटिंग हाइपरप्लेन विद शिफ्ट कांस्टेंट 1. क्वेश्चन ये कि मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि अगर मुझे ये पूरा हाइपरप्लेन मूव करने आ गए. Okay. ये इसका थ्योरम का प्रूफ है, क्रॉलरी, कि कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज अ रिवर्स प्रूफ. If there exists a valid separating hyperplane WB, then there always is a hyperplane W double prime B double prime such that, यानी ये आपका जो लाइन है ये यहां पर शिफ्ट हो सकती है अगर ये 3 रूल फॉलो करें तो. W double prime B double prime is a valid separator still. एक ये WB and W double prime B double prime have equal margin. मार्जिन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए. And the bounding hyperplanes of W double prime B double prime are shifted away by 1. कोई लाइन का फासला पिछली लाइन से 1 से कम ना हो. एक तो मैंने वैसे रखा है यहां पर, यानी किसी एक का कम ज्यादा ना हो, बस. दैट्स द मीन. अगर ये 3 पॉइंट्स, if these are valid, so you have shifted your whole hyperplane correctly. That is the corollary or proof of your algorithm. सर फिर सेकेंड और थर्ड तो एक ही पॉइंट हो गया. नहीं, सेकंड और थर्ड कैसे? नहीं, सेकंड और थर्ड ये नहीं है ना. सेकंड और थर्ड का तो है कि बीच वाली लाइन से मार्जिन विड्थ सेम हो, ठीक है. लेकिन थर्ड पॉइंट ये है कि द बाउंडिंग हाइपरप्लेन ऑफ W डबल प्राइम B डबल प्राइम
जिसमें तीनों लाइनें शामिल हैं, वो जितनी एक लाइन मूव कर रही है, तीनों की तीनों उतनी डिस्टेंस के साथ मूव करें। दैट इज द थर्ड पॉइंट। Therefore, to find a maximum margin classification, we can limit the search to all hyperplane of this special type. अब हमने जितनी भी हमारी वेक्टर स्पेस है उस सारे के अंदर हमने हाइपरप्लेन के लिए सर्च करना है कि कहां मैक्सिमम मार्जिन हमें मिल सकता है। And further advantage, it seems to be a good idea to use a linear classifier that lies equally spaced between its bounding hyperplanes. तो अच्छा वो होता है कि जिसमें आपकी जो लाइन दैट इज मिडल में हो। ये वो एल्गोरिथम है जो मैं आपको बता रहा था जिसके अंदर इपोक चलती है। इसका मैंने पूरा स्टेप आपको रन करके दिखा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो एक स्टेप की बजाय यू विल रन दिस 1 to n। हर स्टेप में यू विल मूव शिफ्ट योर होल हाइपरप्लेन। ठीक है जी, ये पहली ऑप्टिमाइजेशन थी। नाउ व्हाट इज द मार्जिन विड्थ ऑफ सच हाइपरप्लेन। अब मार्जिन विड्थ हम कितनी रखें, उसके लिए ये है उसका, क्योंकि मैंने आपको बताया था ह्यूमन कैन सी बट एल्गोरिथम कैन नॉट सी दिस, सो वी हैव टू प्रोवाइड सम फार्मूला टू एल्गोरिथम। और वो जो फार्मूला है वो ये है, वो कहता है कि लीनियर अलजेब्रा से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। हमें क्या पता कि दिस मार्जिन इज ऑप्टिमल। ये एल्गोरिथम को कैसे पता चलेगा। द डिस्टेंस ऑफ हाइपरप्लेन इज, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी, द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट स्पेस इज बी डिवाइड बाई नॉर्म वेक्टर का पता है आपको, नॉर्म वेक्टर। वेक्टर नॉर्म भी कहते हैं इसको। वेक्टर मैकेनिक्स नहीं पढ़ी आपने बीएससी में? वेक्टर नॉर्म, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडरस्कोर अंडर रूट। अगर ये वेक्टर है, ये लाइन है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इस लाइन से कितना दूर है ये, इसको हम कहते हैं वेक्टर नॉर्म। अगर ये ए है और ये बी है तो दिस फॉर्मूला विल गिव यू दिस वेक्टर नॉर्म। ओके, तो वो कहता है कि ये जब मार्जिन को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, इसका फार्मूला ये है कि बी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय वेक्टर नॉर्म। अब हमारे इस एग्जांपल में b is 2, we all know that, and w we can calculate। सर ये वेक्टर नॉर्म आपने ऊपर अगर ट्रायंगल के तौर पे इसके लें तो जो हाइपोटेन्यूज है ये वेक्टर नॉर्म को शो किया हुआ है, ए और बी, अगर एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है और तीसरा हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, जो हाइपोटेन्यूज है ये आपका वो है वेक्टर नॉर्म है। यस, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सर, ये कैलकुलेट करने। पाइथागोरम, यस, ठीक है। Consequently, our goal is to maximize the margin width subject to the constant from the previous slide। ये अब मैं इसमें नहीं जाता डिटेल में, मार्जिन 2 का एल्गोरिथम है जिसमें अगेन आपने 1 से 1000 की आइट्रेशन या जितनी भी आपने रखनी है वो करेंगे, बार बार हर आइट्रेशन में ये फार्मूला चेक होगा, ये फार्मूला। और जहां पर आपने थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है, टॉलरेंट क्राइटेरिया जहां लगाया हुआ है, वहां पर जाके ये स्टॉप कर देगा। Note that due to maximize the marginal goal, the last two constraints are not needed anymore because जो हार्ड पॉइंट थे, ये तो एग्जैक्ट सपोर्ट वेक्टर है ना,
-1 और 1 ये क्या है, जो आपकी पॉइंट इन बाउंड्री के ऊपर पड़े हैं। दिस इज -1, दिस इज +1। इधर जितने भी हैं वो >1 है, इधर जितने भी हैं वो <1 है। ठीक है। The problem then becomes maximize 2 divide by 2 W norm vector। ये मैंने आपको बताया कि मार्जिन, मैक्सिमम मार्जिन या ऑप्टिमल मार्जिन के लिए बेसिकली हमने इसको मैक्सिमाइज करना है, और इसको मैक्सिमाइज करने का मकसद है W नॉर्म वेक्टर को मिनिमाइज करना है। जब वो मिनिमम होगा तो 2 के नीचे जब उसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। ओके, here instead of maximizing 2 divide by W norm vector, we also can minimize W, ऑटोमेटिकली वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। और इसको और अगर उसमें आपने जनरलाइज टर्म में रखना है तो 0.5 से मल्टीप्लाई करा दें, इसका स्केयर ले लें और 0.5 से मल्टीप्लाई करा दें, तो इट्स द सेम थिंग। आप इसको ना भी करें, यू कैन जस्ट मिनिमाइज दिस। स्केयर अवॉइड्स द स्केयर रूट, वो इसलिए मैंने स्केयर लिया था क्योंकि जो वेक्टर नॉर्म का फॉर्मूला है वो है स्केयर रूट के साथ। जब आप ये जो स्केयर यहां अप्लाई करेंगे तो इससे ये स्केयर रूट खत्म हो जाएगा। ओके, squaring avoids the square root within this vector norm. The factor 0.5 brings the problem into some standard। दोबारा प्रॉब्लम को अपनी उसमें लाना, जो स्केयर आपने लिया उसको बैलेंस करने के लिए 0.5 से मल्टीप्लाई करती है। The problem then तो प्रीवियस स्लाइड में ये 0.5 into ये इक्वेशन किस तरह आई है? इसको हमने वो रिवर्स कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को। जी रिवर्स कर दिया, इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए। अगर आप ये नहीं भी करना चाहते, इसमें कंफ्यूजन है आपको, जस्ट मिनिमाइज दिस पार्ट ओनली, दैट्स सेम। ये तो स्क्वायर रूट को मैंने खत्म करने के लिए काम किया। द प्रॉब्लम देन बिकम्स मिनिमाइज 0.5 W नॉर्म वेक्टर स्क्वायर। ठीक है जी, ओवर ऑल W बिलोंग्स टू, जितने भी आपकी वेक्टर स्पेस के अंदर हाइपरप्लेन बन सकते हैं, एंड B बिलोंग्स टू दिस, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। ये लूप है आपका, जिसमें क्योंकि अब इक्वल की कंस्ट्रेंट हमें नहीं चाहिए, वो हार्ड पुश है सपोर्ट वेक्टर्स। हमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्टिमाइज करना है वो पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड को और पॉजिटिव साइड को करना। द टू कंस्ट्रेंट कैन बी कंबाइंड इनटू सिंगल, इसको आप मिला के ये भी बना सकते हैं मैथमेटिकली। एंड नाउ दिस इक्वेशन कैन बी ऑप्टिमाइज्ड बाय लैग्रांज मल्टीप्लिकेशन। ये आप सर्च कीजिए गूगल में आज जाके, लैग्रांज मल्टीप्लिकेशन का एक पूरा फार्मूला है जो इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्टिमाइज करता है। So these were the steps that algorithm implements to get two optimal things. One is the position of the line, second is the margin of the line. Okay, actually quickly I want to show you the video कि ये किस तरह से काम हो रहा है। मैं इसको जल्दी से खत्म कर लूं, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो I want to show the video. At the beginning we assume that our training data is linearly separable. What if it's look like this? अगर ये हो इस तरह का केस तो क्या करेंगे? दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि वही हाइपर प्लेन रहने दें, और वी कैन कंप्रोमाइज दिस मिस क्लासिफिकेशन विच इज अ गुड डिसीजन, और go like that and then come back and then do this is a separator line. Is this good solution? No sir. No, this is not good solution. तो इससे बेहतर है कि we will have a hyperplane, previous one, and we can have one misclassified error. Soft margin, so-called soft margin, can be used to handle such cases. We allow the classifier to make some mistake on the training data. मैंने आपको बताया जिस तरह कि अगर आपके ट्रेनिंग डाटा में कोई इस तरह के मिसक्लासिफिकेशन है, so those points can be handled through soft margin.
ईच मिसक्लासिफिकेशन गेट्स असाइन एन एरर। अब ये जो मिसक्लासिफिकेशन है, मैंने आपको वैसे बताया भी था कि ये नो डाउट ये मार्जिन आपकी हेल्प तो करता है कि चांसेस कम होंगे प्रोबेबिलिटी के इस क्लास का डाटा पॉइंट इधर आए, लेकिन अगर कोई आ गया तो हमें उसका बहुत ज्यादा एरर की फॉर्म में पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, at the beginning we also assumed that there are only 2 classes in the training set. How to handle more than 2? ये मल्टी क्लास प्रॉब्लम आ रहा है। उसके 2 तरीके हैं, 1 वर्सेस ऑल क्लासिफिकेशन और 1 वर्सेस 1 क्लासिफिकेशन। ये 2 टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ 1 वर्सेस ऑल क्लासिफायर और 1 वर्सेस, ये मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट फिनिश दिस लास्ट पॉइंट, ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग एसवीएम में क्या होती है? अगर आपके ट्रेनिंग डाटा में इस तरह के पॉइंट आ रहे हैं बार बार, तो बेसिकली आपका मॉडल जो ट्रेन हो रहा है वो इस डाटा पॉइंट को रेड समझने लगेगा कुछ देर बाद, विच इज एक्चुअली नॉट रेड। Okay, if we use a mapping to a high dimensional space that is complicated enough, we could find a perfect linear separation in the transform space for any training set. So what type of SVM is right one? एक ये भी है, अगर आपके पास ये हो, like again how we can separate this? Should we separate through this? This is not good. फ्यूचर में ये तो डाटा पॉइंट इधर गया, लेकिन देयर इज हाई चांस के ब्लू यहां पर भी आए, ब्लू यहां पर भी आए। इफ वी हैव दिस हाइपर प्लेन, जो कि हमने एक पॉइंट की वजह से ये लाइन ड्रॉ की, तो इन फ्यूचर यू हैव 3 मोर पॉइंट इन दिस वे विच आर द रॉन्ग। तो आपकी जो हाइपर प्लेन का आपने डिसीजन लिया दैट वाज इनकरेक्ट। A perfect classification for the training set could generalize badly on new data. वो उस केस में होता है कि अगर आपने टेस्ट डाटा को चेंज कर दिया तकरीबन। Fitting a classifier too strong to specify properties of the training set is called overfitting. अगर आपने ये जो overfitting हो गई, यहाँ पर मॉडल आपका यहाँ ट्रेन हुआ है इस डाटा पे, which it is considering a red but actually not red. So टेस्ट डाटा में जब भी ये पॉइंट आएगा वो इसको रेड ही क्लासीफाई करेगा। तो उसमें ये होता है कि you can do randomly split available data into 2 parts, training and test. Use the first part of learning the classifier, ये तो standard है। Second part of checking the classifier performance. Choose the classifier that maximize performance. अब आपने मल्टीपल सैंपल्स पे मल्टीपल क्लासिफायर रन करके देखे हैं एसवीएम के, और जिस सैंपल्स पे आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है उस क्लासिफायर को आप अप्लाई करते हैं। That was all, and before we finish today's one lecture, let me show you the quick video. अब आपको ये वीडियो, ये YouTube वाली वीडियो नजर आ रही है सबको? Yes, sir, visible. Okay. Now I'm going to run. अभी आपको So OVR means one versus rest. So what it does is, if you had, let's say here, we had 3 different groups that you wanted to classify, what OVR would do is it would try its best to classify the blue group versus all the rest of the data. I don't know, आवाज आ रही थी आपको इनकी? Yes sir. Yes sir. जी सर। चले आपको वैसे समझा देता हूँ। ये है 1 वर्सेस, ये बात हो रही है मल्टी क्लासेस की। ये जो ये स्लाइड है, ये वाली साइड, ये है 1 वर्सेस रेस्ट।
आपने कोई एक क्लास को पिक करना है, उसको क्लासिफाई करना है फ्रॉम अदर ऑल क्लासेस, फिर दूसरी क्लास को पिक करना है, उसको क्लासिफाई करना है फ्रॉम ऑल अदर क्लासेस, और फिर तीसरे में आपको, क्योंकि यहाँ 3 ही क्लासेस है, तीसरे में तीसरी बचेगी ओनली। इसको कहते हैं वन वर्सेस रेस्ट। ये जो राइट साइड वाली है एग्जांपल है, ये है वन वर्सेस वन। यू कैन चूज एनी टेक्निक। इसमें सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप, ब्लू को रेड के साथ, रेड को ग्रीन के साथ, ग्रीन को ब्लू के साथ। So these are the two approaches for multi-class. और multi-class कैसे look like? I think let me show if I can see this. Yes, ये multi-class problem है जी। आपको नजर आ रहे हैं 3 किस्म के डाटा पॉइंट्स? यस सर। ये बटर है, ये शुगर है, आई डोंट नो ये क्या है। अब इसमें आपने 3 लेबल्स लगा फाइंड करने हैं। आपका डाटा जो है उसमें से 3 में से कोई एक लेबल हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड मल्टी क्लास प्रॉब्लम। मफिन, सॉरी, मफिन है, कपकेक है, स्कोन है, ठीक है, जिसमें शुगर और बटर की मिकदार को देख के आपने ये बताना है। जो आपके पास डाटा आ रहा है वो शुगर का आ रहा है, कितना वैल्यू शुगर की है और कितनी बटर की है, और आप उसमें से ये बताएंगे कि ये मफिन था, ये कपकेक था, या ये स्पून था। दैट इज मल्टी क्लास। ओके, अब मैं एक और चीज आपको दिखाने वाला हूं। यस, ये वो जो काम है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे ये प्लेन मूव करता है। यस, मैं इसको निकाल रहा हूं, आपको आवाज आती रहेगी। आई कांट लिसन यू, ओके? So you better move closer to me in order to classify me better. So we move a little closer. Remember that machine learning want to do tiny steps. We don't want to make any big drastic steps. So we ask another point. This one is red in the red area. So it says I'm good. Don't do anything. Then we ask this one over here and it says get over here. So we get over there. Then we ask this blue one in the blue area. So it says I'm good. By the way, we're grabbing random points here. There's no particular order. Then we ask this one, it's a red point in the red area, so it says I'm good. We ask this point, which is a blue point in the red area, so it says get over here. So we move closer. Then we ask this red in the red area, so it says I'm good. Then this red, which is now misclassified, is on the blue area, so it says move over here. And we listen to it, and now it seems like all the points are good. So that is, in a nutshell, the perceptron algorithm. I'd like to remind you that the way we did it is we started with a random line with red and blue sides. Then we picked a large number, the number of repetitions or epochs, which in this case is going to be 1,000. That's the number of times we're going to repeat our iterative step. Then step 3 says repeat 1,000 times. We pick a random point. We ask the point if it's correctly classified or not. If it's correctly classified, we do nothing. If it's not correctly classified, then we move the line a little bit towards the point. And we do this repeatedly, so we get the line that separates the data pretty well. So anyway, that's a small recap of the perceptron algorithm. And this algorithm is going to be very similar, but it's going to have a little bit of an extra step. So let me show you that extra step. First, let's start by defining what is it that the SVM does best. So I'm going to give you an example of some data here, and I'm going to copy it twice. And this is a line that separates this data, and this is another line that separates that data. So question for you, which line is better? So feel free to think about it for a minute. I think the best one is this one on the left, and this one on the right is not so good. Even though they both separate the data, if you notice, the one on the left separates the points really well, like it's really far away from the points, whereas the one on the right is really, really close to 2 of the points. So if you were to wiggle the line on the right around, you may miss one of the points and you may misclassify them, whereas the line on the left, you can wiggle it freely and you still get a good classifier. So now the question is, how do we train the computer to pick the line in the left instead of the line in the right? Because if you remember, perceptron algorithm just finds a good line that separates the data, but it doesn't necessarily find the best one. So let's rephrase the question.
what we want to do is not just find one line, but find two lines that are as spaced apart as possible from each other. So here, for example, centered on the main line, we have these two parallel equidistant lines. And notice that for this case on the left, we can actually have them pretty far away from each other. On the other, कोई समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ये सारा यही मैंने आपको बताया सारा। पहले उसने आपको दिखाया है कि किस तरह लाइन मूव होती है, और दूसरे में अब ये दिखाने जा रहा है। ये देखें, एक में मार्जिन ज्यादा रखा है उसने विड्थ का, और एक में कम रखा है। जो कम वाले हैं उसमें चांसेस ज्यादा हैं कि अपोजिट क्लास का डाटा पॉइंट दूसरी तरफ आ जाए। ठीक है, मार्जिन ज्यादा होगा तो ये चांसेस कम होते जाएंगे। दैट इज द सेकंड ऑप्टिमाइज पॉइंट, और उसने आपको पिछली स्लाइड पे एल्गोरिथम भी इपॉक के साथ दिखाया है। आई थिंक दैट्स आई कैन स्टॉप हियर, एंड ये वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, यू कैन वॉच बाय योरसेल्फ, एंड आई थिंक देन यू विल हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। गुड? Yes, sir. Okay, so now let's go to the attendance quickly. Yes, Mohammad Farhan. Yes, sir. Tuba. Yes, sir. Saad. Present. Mohammad Kashif. Present, sir. Mohammad Usama. Yes, sir. Pir Sami. Pir Sami. Irfanullah. Present, sir. Sir, present. P. Sami was available in the class. Maybe he is disconnected right now. Okay, Irfanullah. Present, sir. Sir, Amna. Present, yes. sir. Tahmina. Present, sir. Sania. Present. Abdur Rahman. Present, sir. Muhammad Usama. Usama. Present, sir. Saif. Present, sir. Shahzeb. Shahzeb. Nasir. Yes, sir. Muhammad Zubair. Present, sir. Talha. Talha. Shabir. Yes, sir. Uzair. Present, sir. Rida. Present, sir. Anam. Present, sir. Adil. Present, sir. Umar. Present, sir. Abdul Hanan. Yes, sir. Farjad. Present, sir. Zahra. Present, sir. Tasbiha. Yes, sir. Rehan. Present, sir. Naeem. Naeem Akhtar. Abdul Hai. Present, sir. Present, Ali Hasnan. Present, sir. Muhammad Haris. Present, sir. Waleed. Present, sir. Jahazeb. Present, sir. Aisha Farooq. Present, sir. Muhammad Shoaib. Present, sir. Muhammad Umar. Present, sir. Muhammad Ismail. Ismail. Kumail Abbas. Present, sir. Okay, so that's all. And on Friday, we have a presentations for groups 5 and 6, right? 5, 6, 7, 3. Okay, so let's meet on Friday. Excuse me, sir. Yes? सर मैथमेटिकल इक्वेशंस जो आज हमने पढ़ी हैं, क्या ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमें वो करना है, क्वेश्चन अगर आ सकते हैं इससे पर्टेनिंग
के डेप्थ देखिए जाना जरूरी है। मैथ्स से रिलेटेड ही मैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको मैं कोई डाटा पॉइंट्स को कोई सैंपल दे के आपसे पूछ सकता हूं कि आप इस डाटा के ऊपर मुझे जस्ट 1 या 2 इपॉक रन करके दिखाएं, ओके, विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। Right. Okay, so that's all, or then meet on Friday. Yes, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। Allah Hafiz. सर अब्दुल हाई की अटेंडेंस कंफर्म कर दें प्लीज, क्योंकि नेटवर्क का मसला आ रहा था। अब्दुल हाई, यस लगी हुई है जी, लग गई है।